السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طلبات، آج ہم سبق نمبر 13 جماعت پنجم کے ماحول کے مطالعہ نمبر 1 کا یہاں مطالعہ کریں گے۔ پیارے بچوں، یہاں پہ سبق کے مقاصد دیے گئے ہیں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت پنجم کا سبق نمبر 13 غذا کو محفوظ کرنے کے طریقے ماحول کے مطالعے کے میقات اول کا میقات اول ختم ہونے کے بعد میقات دوم کا پہلا سبق ہے۔ اب یہی سبق میں آپ کو غذا کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں سمجھایا جائے گا۔ دیکھیے بچوں، ہم صبح دن نکلنے سے شام ہونے تک جو بھی غذا استعمال کرتے ہیں، اس میں گیہوں، چاول، جوار، اناج کی مسلسل ضرورت ہوتی ہے۔ اب ان کی فصلیں سال بھر میں مخصوص عرصے تک ملتی ہے۔ کیا روز روز گیہوں اگا سکتے؟ کیا روز روز چاول اگا سکتے؟ کیا نہیں بیٹے؟ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک ہنگام سے دوسرے ہنگام آنے تک سال بھر انتظار کرنا پڑتا، اور لیکن ایک ہنگام آنے کے بعد دوسرا ہنگام آنے تک تو انتظار کرنا پڑتا فصل حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جو فصل ہمیں ایک مرتبہ دستیاب ہو گئی، ایک اس کے موسم میں دستیاب ہو گئی، تو ہمیں انہیں حفاظت سے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم ان کا سال بھر ذخیرہ کرتے ہیں۔ اور سال بھر ذخیرہ کرنے کے بعد 365 دن یعنی سال کے 12 مہینے ہمیں اناج دستیاب ہوتا۔ اس طریقے سے مختلف غذائی اشیاء ہے، جیسا روزمرہ زندگی میں دودھ ہو گیا، انڈے ہوگا، ڈیری فارم، پوٹری فارم۔ اب طویل عرصے تک اس کو اچھی طریقے سے محفوظ رکھنا اور دور دور کے لوگوں تک انہیں پہنچانا، اچھی حالت میں ان کا رکھنے کا انتظام کرنا، اس کے لیے بعض وقت کیا ہوتا ہے، اس پہ کیمیائی عمل کر کے بھی ان چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا موسم گرما کے موسم میں آپ کی والدہ تو پاپڑ سکھا کر رکھتی ہے، سیویاں بنا کر رکھتی ہے، مسالوں کو دھوپ دے کر رکھتی ہے، یعنی سکھانا، یعنی یہاں پر کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہم، غذا کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ سکھانا بھی ہے۔ مختلف موسموں میں الگ الگ پھل اور ترکاریاں بھرپور مقدار میں ملتی ہے، یا پھر آپ کے ابو جو فروٹ لا لیتے، دیکھیں یہ فروٹ کی دکان سے انہوں نے فروٹ لا لیے۔ اب یہ فروٹ لانے کے بعد آپ گھر میں کیا کرتے ہیں، ان فروٹ کو، سبزیوں کو، جس کے پاس فریج ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اچھی حالت میں فریج میں رکھتے۔ اگر جس کے پاس فریج نہیں ہے تو وہ کیا کرتے، ایک لکڑی کے باریک کاڑیوں کی ٹوکری ہو، اس میں اچھا کاٹن کا کپڑا بھگا کر رکھتے، اور اس کے اندر سبزیاں، فروٹ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ تو جس موسم میں کوئی فروٹ آ رہا ہے یا سبزی آ رہی ہے تو اس موسم میں اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور زیادہ مقدار میں حاصل شدہ پھل اور ترکاریاں برباد نہ ہوں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ان کا ذائقہ بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے اور انہیں محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے، گھر گھر میں کئی قسم کے پاپڑ بنائے جاتے ہیں، مربے بنائے جاتے ہیں، اچار موسم گرما میں پیاز سکھا کر رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، آپ نے چھوٹے چھوٹے مچھلیاں، بڑی مچھلی تو آپ کو مچھلی مارکیٹ میں ملتی، لیکن اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی سکھا کر فروخت کی جاتی ہے، تو وہ مچھلیاں اس کو محفوظ کس طریقے سے کیا تھا، اس میں نمک ڈال کر یا دھوپ دے کر۔ آج کل تمام اشیاء کو خریدنے سے پہلے اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ کون سا تھا، یا اس میں کتنی کیمیکل دوائیں استعمال کی گئی، یا پھر کب محفوظ کیا گیا، اس کی پیکنگ کب ہوئی، یہ تمام چیزوں کی ڈیٹ بھی چیک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، باورچی خانے کے لیے درکار اشیاء لانے کے لیے بار بار بازار نہ جانا پڑے، اس لیے ہم کم سے کم ہر لوگ تو 1 مہینے کا، 15 دن کا یا 1 ہفتے کا راشن اپنے گھر میں بھر دیتے ہیں۔ اب وہ تو سوکھی ہوئی دالیں ہوتی ہے، کچی گیلی سبزیاں ہوتی ہے، فروٹ ہوتے ہیں، تو ہم سبزیوں کو، فروٹ کو فریج میں رکھتے ہیں، دالوں کو اچھا پیک ڈبوں میں رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس لائن پر دیکھیے، اچار اور مربے، یہ ڈبوں کے نیچے دیکھیے، باورچی خانے کے لیے درکار اشیاء لانے کے لیے بار بار بازار جانا نہ پڑے، اس لیے ہم کئی دنوں کے لیے درکار اشیاء لا کر گھر میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے لیے بنائی گئی اگر غذا بچ جائے یا شام یا دوسرے دن بھی استعمال کی جا سکے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اسے فریج میں رکھ کے استعمال کرتے، یا پھر اچھی طریقے سے گرم کر کے استعمال کرتے۔ اب دیکھیے، بتائیے تو بھلا، ذیل میں دی ہوئی اشیاء کے تعلق سے آپ کو چند سوالات پوچھے جائیں گے۔ پوچھے ہوئے سوالوں کے جواب گھر کے بڑوں سے معلوم کیجیے۔ نمبر 1 سوال ہے، دودھ، سبزیاں، اناج، آٹا، شکر، گڑ وغیرہ
हम ऐसा कब कहते हैं कि शय खराब हो गई, इसमें कौन सी तब्दीली आती? जैसा कि आपको दूध की एक मिसाल बता रहे हैं, हम कब बोलते हैं शय चीज खराब हो गई? तो दूध का फटना यानी दूध खराब होगा, या उसका जायका बदल जाना, मजा बदल जाना। अक्सर मौसम गर्मा में ऐसा होता है कि सालन का या रात की सब्जी का जायका सुबह में तब्दील हो जाता है। नंबर दूसरा सवाल, क्या ग़िज़ाई शय खराब होने के लिए दरकार वक्त अलग अलग मौसमों में मुख्तलिफ होता है? हाँ, मौसम सरमा में चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती है, उसकी बनिस्बत मौसम गर्मा में चीज़ें जल्दी खराब हो जाती है। तीसरा सवाल है, सबसे जल्दी खराब होने वाली अशिया कौन सी है? जैसा कि दूध सबसे जल्दी खराब हो जाता है, गीली सब्जियां खराब हो जाती, बहुत ज़्यादा बारिश। आप बोलेंगे कि मैडम ने अभी टीचर ने बताया मौसम गर्मा में चीज़ें जल्दी खराब हो जाती, लेकिन मौसम में बारिश में भी सब्जियां जो होती है तो ज़्यादा पानी की वजह से गीलेपन से वो सड़न पैदा करती है और जल्दी खराब हो जाती है। अब सवाल नंबर 4 है, घर में लाई हुई अशिया ज़्यादा दिनों तक अच्छी हालत में रहे इसके लिए क्या करते हैं? या तो चीज़ों को सुखा कर रखा जाता, या गर्म करके रखा जाता, या फ्रीज में रखा जाता, या फिर उसको नमक लगा कर रखा जाता। मुख्तलिफ तरीके जो है तो उस चीज़ों के हिसाब से की जाती है उसकी हिफाजत। अगर ये मालूम हो जाए कि ग़िज़ाई अशिया किन वजूहात की बिना पर ख़राब होती है तो इन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करें, ये भी हम जान सकते हैं। दी हुई मालूमात की बिना पर आपके जहन में दर्ज झैल बातें आ गई होंगी। नंबर 1, सरमा के मौसम में ग़िज़ाई अशिया ज़्यादा दिनों तक अच्छी हालत में रहती है। इसी तरह अगर फ्रीज या बर्फ में रखे तो वो और ज़्यादा अरसे तक अच्छी हालत में रहती है। फ्रीज में रखने से क्या होता है, ग़िज़ाई अशिया और ज़्यादा अच्छी हालत में रहती है। अनाज धूप में सुखाकर ग़िज़ा करते, मतलब अनाज को क्या करते, धूप में सुखाकर ज़ख़ीरा करते हैं। जैसा कि गेहूं को अगर हम धूप देकर रख दिए तो उसमें बो पैदा नहीं होती, नमी पैदा नहीं होती, कीड़ा नहीं लगता। प्याज, आलू गर्मा में खुली हवा में रखकर अच्छी तरह सुखाकर खुश जगह पर रखें तो वो ज़्यादा अरसे तक अच्छी हालत में रहता है। नंबर 3, अगर हम दूध जोश देकर रखें तो वो अच्छा रहता है। खाना खाने के बाद बची हुई दाल सब्जी अगले खाने तक अच्छी रहे, इसीलिए इसे गर्म करके रखते हैं। नंबर 4, सवाल नंबर 4 है, आम रस दूध जो है तो जल्द खराब होने वाली अशिया है। आम का रस भी आपने बनाकर रख दिया या स्टील के बर्तन में रखे तो फौरन वो काला होना शुरू हो जाता है। नंबर 5, कीड़ों, चूंटियों, चूहों, घूस और बिल्लियों से ग़िज़ाई हमें क्या करना चाहिए, ग़िज़ाई अशिया की हिफाजत करना चाहिए या हमारे ग़िज़ा को दूर रखना चाहिए, झूठा नहीं खाना चाहिए। बच्चों, अभी हमने बताया कीड़ों, चूंटियों, चूहों, घूस और बिल्लियों से हमारे ग़िज़ा को दूर रखना ज़रूरी होता है। अगर हमने बिल्लियों का झूठा खा लिए या चूहों का झूठा खा लिए या कीड़े वाली चीज़ें इस्तेमाल कर दिए तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती, पेट ख़राब हो सकता। अब देखिए इसके नीचे, आइए ये करके देखिए। एक चपाती लेना है, उसके 3 टुकड़े कीजिए। एक टुकड़ा अगर हमने बंद डब्बे में रख दिए और दूसरा टुकड़ा दोबारा गरम तवे पर रखकर अच्छी तरह सेक कर ठंडा कीजिए और डब्बे में बंद करके रखिए तो आप देखेंगे। और तीसरा टुकड़ा क्या करना है, उसी टुकड़े को डब्बे में, तीसरे टुकड़े को डब्बे में बंद करके फ्रिज में रखें और 2-3 दिनों तक हम सुबह और शाम इन टुकड़ों का मुशाहिदा करते रहें तो आपको क्या नजर आएगा बच्चों, कौन सा टुकड़ा जो है तो डब्बे में चपाती के टुकड़े पे कपास जैसा सफेद या काले हरे रेशे बढ़ने लगते हैं। वो रेशे को दरअसल फफूंद कहते हैं। इस तरह चपाती में बू आने लगती है। जो हवाबंद डब्बा था उसके अंदर होता। इसके बरखिलाफ फ्रिज में जो रखा हुआ है, दोबारा सेक कर ठंडा किया हुआ जो टुकड़ा है चपाती का, वो कई दिनों तक खराब नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है आपके अंदर सवाल जहन में आएगा। तो चपाती पर नशोनुमा पाने वाले कपास जैसे रेशम के एक किस्म की फफूंद है और फफूंद खूरबीनी जानदार होते हैं। अब खूरबीनी जानदारों की नशोनुमा धूप में नहीं होती, नम जगह पे जल्दी हो जाती है और फ्रिज में जो है तो ये खराब नहीं होती। फफूंद के बजरे हवा या पानी में रहते हैं। फफूंद के जो जीरे बजीरे हैं वो कहाँ पर रहते हैं? हवा में या पानी में रहते। डब्बे में रखी हुई चपाती की वजह से इन्हें नशोनुमा के लिए दरकार तग़ज़िया बख्श माहौल यानी ग़िज़ा, पानी, इस तरह हवा और हरारत भी मिलती है। इसीलिए डब्बे में रखी हुई चपाती पर फफूंद की नशोनुमा तेजी से होती है। अब देखिए हम ग़िज़ा और खूरबीनी जानदार क्या देखेंगे बच्चों, ग़िज़ा और खूरबीनी जानदार। आप जानते हैं कि हमारे गिर्द हवा, पानी,
हर जगह खूनबीनी जानदार मौजूद है। आम हालत में ग़िज़ाई अशिया को हरारत, पानी, हवा ये तमाम अज़्ज़ा दस्तयाब होते हैं, यानी हमारी ग़िज़ाई अशिया में तेज़ी से खूनबीनी जानदारों की नशोनुमा हमेशा मुमकिन होती है। और खूनबीनी जानदार इतने बारीक होते हैं कि वो हमारी सादी आँखों से नज़र नहीं आते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन खूनबीनी जानदार ग़िज़ा में बढ़ने लगे तो ग़िज़ा का जायका बदल जाता है, ग़िज़ा ख़राब हो जाती है। ऐसी ग़िज़ा अगर हम इस्तेमाल करें तो पेट दर्द, खैं, इसाल हो सकते हैं। ऐसी ग़िज़ा की ग़िज़ाई क़दर में कमी आ जाती है और इस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करने से हमारी सेहत को ख़तरा भी लाहक होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं ग़िज़ा को महफूज करने के तरीक़े। नंबर 1 तरीक़ा बता रहे हैं हम, खुश्क करना। खुश्क करना यानी उसका जो तो सुखा देते हैं। हम जब ग़िज़ा सुखाते हैं तो इसमें मौजूद पानी खारिज होता है, जैसा कि पापड़ है, सेवियाँ है, बड़ियाँ, गेहूँ, दालें, ऐसी चीज़ों को क्या करते सुखाकर महफूज किया जाता है। यहाँ पर तस्वीर में पापड़ को सुखाकर रखा जा रहा है बच्चों। अब देखिए सर्द करना। सर्द करना यानी सर्द करने के लिए आप क्या करेंगे, बर्फ बाहर रख सकते हैं, क्या पिघल जाएगा। इसके लिए एक मशीन है जिसका नाम फ्रीज है। सर्द करना, ग़िज़ा फ्रीज में रखने से खूनबीनी जानदारों की नशोनुमा के लिए दरकार हरारत इन्हें नहीं मिलती है और हमारी ग़िज़ाई चीज़ें अच्छी महफूज हालत में रहती है। उसके अलावा उबालना यानी दूध को अच्छी तरीके से गर्म करते, उबाल आने तक, जोश आने तक। इससे भी क्या हो जाता है, खूनबीनी जानदार, दूध को उबालने से खूनबीनी जानदार हलाक हो जाते यानी खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा हवाबंद डब्बे में रखना। ग़िज़ा को हवाबंद डब्बे में रखने से क़ब्ल वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डब्बे के खूनबीनी जानदारों का खात्मा किया जाता है। इसके बाद डब्बे में हवा और पानी दाखिल न हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर देखिए टमाटो सॉस है। ग़िज़ाई अशिया को महफूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें मौजूद खूनबीनी जानदारों का खात्मा करना पड़ता है या इन्हें ऐसे हालत में रखना होता है कि ग़िज़ा में इनकी नशोनुमा ना हो। अब आइए ये करके देखिए। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा छोटा सा तजुर्बा यानी आपको एक्टिविटी दी गई है अचार बनाने की। अचार बनाने के लिए ज़रूरी अशिया क्या है बच्चों, औसत जसामत की कांच की एक बरनी लेना है, छुरी लेना है, लकड़ी या स्टील का चमचा लेना है, 7-8 लीमू, पाव कटोरी नमक, 2 चमचे मिर्च का सुफूफ लेना है और 1.5 कटोरी शक्कर लेना है। यहाँ पर लीमू का अचार बनाने का तरीका पेश किया गया है। तरीका क्या है, बरनी को साफ और खुश्क कर लीजिए। छुरी से हर लीमू के 8 टुकड़े कीजिए, यानी एक गोल लीमू के 8 टुकड़े करना है। इन टुकड़ों को बरनी में डालकर इस पर शक्कर, नमक और मिर्च डालिए। इस आमेज़े को चमचे से ठीक तरह हिलाइए ताकि तमाम अज्जा क्या हो आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए। इस बरनी के मुंह पर क्या करना है, कपड़ा मजबूती से बांधकर इसे तेज धूप में 10 दिनों तक रखिए। आमेज़े को रोजाना चमचे से हिलाइए। हिलाते वक्त आपके हाथ और चमचे दोनों खुश्क और साफ होना चाहिए। ना तो बोलेंगे आप साफ हाथों से करें तो कुछ नहीं होता, चल पानी से हाथ धो और वही गीले हाथों से आपने घुमाए तो नहीं, बल्कि आपके हाथ और चम्मच दोनों भी खुश्क होना चाहिए। खाने के साथ इसे खाइए। अब तहफूज़ी अशिया यानी जो महफूज करने वाली चीज़ें, अचार और मुरब्बे। जैसा अचार बनाते वक्त नमक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी अचार में नमक क्या हो गई, तहफूज़ी शय हो गई। अचार मुरब्बा महफूज रखने के लिए इनमें कुछ मखसूस अशिया डाली जाती है, इसीलिए ये अशिया साल भर अच्छी हालत में रहती है। जो चीज़ें हिफाजत के लिए डाली जाती है उसे तहफूज़ी अशिया कहते हैं। शक्कर, नमक, हींग, राई, खाने का तेल, सरका ये तहफूज़ी अशिया की मिसालें हैं। अब देखिए, क्या आप जानते हैं हमारे ग़िज़ा के ज़ायक़ों में मसालों की वजह से काफ़ी तनों पाया जाता है। ये हमारी ग़िज़ा जो तो ज़ायक़ेदार मसालों की वजह से होती है। हमारे ग़िज़ाई अशिया के ज़ायक़े मुख्तलिफ होते हैं। हर एक मसाले का मखसूस ज़ायक़ा मज़ा होता है। कोई मसाले का ज़ायक़ा तीखा होता है, जैसा कि काली मिर्च का ज़ायक़ा तीखा यानी तेज़ होता है, वीरे का ज़ायक़ा अलग होता है, इलायची का ज़ायक़ा अलग होता है। मसाले खुश्क करके कई दिनों तक महफूज या ज़ख़ीरा किए जा सकते हैं। इनके आमेज़े का सुफूफ बनाकर मुख्तलिफ मसाले तैयार किए जाते हैं। देखते होंगे आपकी मम्मी ये गरम मसाले जो है, गरम मसाले लौंग, खलमी, शाहजीरा, इलायची, धनिया पाउडर बनाते और इन्हें सुखा कर
क्या करते हैं, इसको सालन वगैरह में, सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। इसे हमेशा ज़हन में रखिए। बंद पैकेट हवा बंद डब्बों में तैयार ग़िज़ा खरीदते वक्त इस पर इस्तेमाल करने की मुद्दत की जांच, यानी जो डेट देखते हम, वो डेट देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए बच्चों, इस सबक में सवाल ये है कि हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा बच्चों, मौसम के लिहाज से अचार, मुरब्बे, कुर्री, पापड़, बड़ियाँ जैसी चीज़ें बनाकर रखने से वो हमारे लिए साल भर इस्तेमाल में आ सकती हैं। दूसरा पॉइंट है, हवा, पानी और हरारत मौजूद हो तो ऐसे मुकाम पर ग़िज़ाई अशिया में खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा तेज़ी से होती है। चंद खुर्दबीनी जानदारों की वजह से ग़िज़ाई अशिया ख़राब होती है। नंबर तीसरा पॉइंट हमने ये देखे, खुश्क करना, सर्व करना, उबालना, हवा बंद डब्बे में रखना, तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का इस्तेमाल करना ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ तरीक़े हैं, यानी ग़िज़ा के महफूज करने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। आइए बच्चों, हम आपको ये बताते हैं। ये मश्क़ी सवालात जवाबात है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ये मश्क़ी सवालात और जवाबात आपको मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।